Today, in the media conference with Lal Goyal, which is brought to you by V4 News, Global TV, V4 Stream, News Gaon se, Samvad Sarokar News, Organ Donation India Foundation and Gyan. Our endeavor is to enlighten you with the current topic. And today our topic is home, a healing place. There is no place like home. Going home is medicinal. It has healing power. A home or domicile is a space used as a permanent or semi-permanent residence for an individual, group, or family. It is a fully or semi-sheltered space and can have both interior and exterior aspects to it. Homes provide sheltered space, for instance, rooms where domestic activity can be performed, such as sleeping, preparing food, eating, and hygiene, as well as providing spaces for work and leisure, such as remote working, studying, and playing. Physical forms of homes can be static, such as a house or an apartment; mobile, such as a houseboat, trailer, or yacht; or digital, such as virtual space. The aspect of home can be considered across scales, from the micro scale, showcasing the most intimate spaces of the individual dwelling and direct surrounding areas, to macro scale of the geographic areas such as town, village, city, country, or planet. A home is generally a place that is close to the heart of the owner and can become a prized possession. It has been argued that psychologically, the strongest sense of home commonly coincides geographically with a dwelling. Usually, the sense of home attenuates as one moves away from that point, but it does not do so in a fixed or regular way. Since it can be said that humans are generally creatures of habit, the state of a person's home has been known to psychologically influence their behavior, emotions, and overall mental health. People may become homesick when they leave their home over an extended period of time. Places like home can trigger self-reflection, thoughts about who someone is or used to be, or who they might become. These types of reflections also occur in places where there is a collective historical identity, such as Gettysburg or Ground Zero. The word home can be used for various types of residential community institutions in which people can live, such as housing cooperatives, nursing homes, retirement homes for seniors, foster homes, etc. Short-term accommodation in a treatment facility for several weeks is unlikely to be psychologically considered home. Healing is the process of the restoration of health from an unbalanced, diseased, damaged, or unvitalized organism. The profession of nursing has been traditionally considered with matters of healing, whereas historically the profession of medicine has been concerned with curing. With physical damage or disease suffered by an organism, healing involves the repair of living tissues, organs, and the biological system as a whole, and resumption of normal functioning. Medicine includes the process by which the cells in the body regenerate and repair to reduce the size of a damaged or necrotic area and replace it with new living tissues. The replacement can happen in two ways: by regeneration, in which the necrotic cells are replaced by new cells that form like tissues as was originally there, or by repair, in which injured tissue is replaced with scar tissue. Most organs will heal using a mixture of both mechanisms. In psychiatry and psychology, healing is the process by which neuroses and physioses are resolved to the degree that the client is able to lead a normal or fulfilling existence without being overwhelmed by psychopathological phenomena. This process may involve psychotherapy, pharmacological treatment, or alternative approaches such as traditional spiritual healing. A treatment that involves the transfer of energy through the healer to the recipient. It promotes self-healing by relaxing the body, releasing tensions, and strengthening the body's own immune system. Healing is natural and non-invasive,
with the intention of bringing the recipient into a state of balance and well-being on all levels. Energy healing is a traditional healing system that restores the balance and flow of energy throughout the body, mind, and soul. This technique works directly with the physical, emotional, and spiritual aspects of well being. It is used to treat various medical conditions, especially elements related to mental health. We humans all have a strong need for safety and security and look for those attributes in our environment. We also look for physical comfort, such as an environment with the right temperature, and psychological comfort, where there is a mix of familiarity and stimulus. So consider how you might boost your comfort level at home. Increase your sense of security by doing an audit of your home. Evaluate the physical comfort of your home, your furniture, floors, and temperatures, to name a few. You might be able to make it more cozy with simple changes like a small carpet by the bed, or decide to start saving for larger items like more comfortable chairs. Consider how you might add some novelty or interest to your home for a latest stimulus. So, to discuss this very important aspect, the home a healing place, we have a panelist with us, those who are having the experience of staying home, those who are expert in healing. So we have a mix of panelists with us. I would like to invite my first guest, and he is Dr. Rajiv Anand. Dr. Rajiv Anand is a senior psychiatrist and marriage counselor. Dr. Rajiv Anand passed his MBBS in 1976 and did MD in psychiatry in 1980 from King's George Medical College, Lucknow. He opted to serve his country when it was very common to settle abroad for brighter future. He has been serving society with his base in Mumbai. He has clients all over India as well as in many other countries. He was honored with Lifetime Achievement Award by AMA. He has conducted more than 3,000 workshops for different groups and companies with audience size of 10 to 800. His television program on various channels have been widely appreciated for his forthright and practical approach. He is leading in the field of mental and emotional well-being for 40 years. He was president of IMA for 2 times. He was interviewed in several talk shows in domestic and internationally. Welcome, Dr. Rajiv Anand, on our show. Dr. Rajiv Anand, as you know, today's topic is home, a healing place. And you being a leading psychiatrist and psychologist, you are having clients from across the world, those who are being healed mentally by you. Now, we would like to know from you, the home, a healing place. Dr. Rajiv Anand, please. Yeah, thank you, Mr. Lal. Good morning, RTG. Welcome, RTG and Rajbir and Bhumi, all 3 fellow panelists, and welcome to the viewers across Kerala and Karnataka and UP and Bihar and across other boundaries and other countries. And thanks to all the TV channels who have been helping Mr. Lal over the last 14 months to carry on this show endlessly and tirelessly. Hats off to everyone. About home, आज थोड़ी बात हिंदी में की जाएगी क्योंकि हमारे बाकी के जो 2 पैनलिस्ट हैं वो भी बेहतर हिंदी में अच्छा बोल सकेंगे, तो हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। हालांकि हमको अगर मौका दिया जाए तो हम आज सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि आज तीनों लोग जो हैं वो तीनों एक अच्छी वाइफ हैं, beside whatever work they are doing apart from their being housewife. And if I say that I have a great respect for women in general, this may sound a little misunderstanding statement. This may sound coming from a man. People see as a man, people appreciating a woman having some other motives. While no, I'm very clear about it that if our mothers and grandmothers had not been what they had been, we wouldn't have been there where we are today. And what I mean by respecting women and respecting mother and grandmother, because they have carried on an institution of home. They had carried on a great healing medium, which unfortunately most of us highly educated and intelligent people, we are losing out on that. हमारी
संस्था हमारी समाज में बहुत लंबे समय से एक बहुत अच्छी परंपरा चली आ रही थी। घर घर है, कितने सारे गाने फिल्में बनाए गए हैं कि घर वापस आना, घर आया परदेसी, कितने सारे वापस घर चलो। तो घर का जो एक महत्व था, उसको हम बहुत ज्यादा ज्ञानी पढ़े लिखे लोगों ने घर के महत्व को खो दिया है। ये आज का टॉपिक मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं भले ही प्रोफेशन से साइकियाट्रिस्ट हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। उससे पहले मैं हर इंसान का वेल विशर हूँ कि कैसे वो कम से कम दवाइयों में, कम से कम खर्चे में, कम से कम हॉस्पिटल गए हुए, कम से कम डॉक्टर्स को विजिट किए हुए ज्यादा से ज्यादा सुखी रह सके और स्वस्थ रह सके। लोग रिसर्च करते हैं अपनी अपनी लेबोरेटरी में, हम रिसर्च करते हैं अपने अपने हिसाब से कि कहाँ पर किसी भी घर में, किसी भी परिवार में, किसी भी फैमिली में, किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में ज्यादा से ज्यादा सुख, ज्यादा से ज्यादा शांति लाई जा सके। और क्यों ऐसा है कि वर्तमान समय में, जबकि हम पूरे मानवता के इतिहास में सबसे ज्यादा सो कॉल्ड एडवांस माने जाते हैं, मगर हमारे समाज में, वर्तमान समाज में क्यों इतने दुख हैं, क्यों इतनी मैरिजेस टूटती हैं, क्यों इतने घरों में झगड़े हैं, क्यों दिरानी जेठानी, क्यों जनरेशन दो में बीच में झगड़ा होता है, इन लॉज एंड डॉटर इन लॉ कांट स्टैंड ईच अदर। और तो और अब तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी झगड़ा होता है। गिव मी माय स्पेस, यू गो टू योर मदर्स प्लेस, आई वुड से समवेयर एल्स, you go for all offshore job, or you go for offsite job, so on so forth. उसका रीजन सिंपल एक है कि हमने घर की गरिमा को, घर के महत्व को खो दिया है। हमने घर को शायद कहने सुनने में अच्छा तो नहीं लगता, मगर घर को हमने शायद एक सराय या एक होटल मान लिया है कि हम घर आएंगे फॉर लिमिटेड पर्पस, फॉर लिमिटेड कंफर्ट, और हम जल्दी से फिर उड़ जाएंगे काम के लिए। जबकि बैलेंस भी ये था कि हम 8 घंटे बाहर काम करेंगे, जो भी हमारा काम है, दुकान है, व्यवसाय है, हमारा जॉब है, हमारी प्रैक्टिस है, हम किसी भी कंपनी में मैनेजर हैं, 8 घंटे हम काम करेंगे और उसके बाद हम काम को, बिजनेस को, प्रोफेशन को पूरी तरह भूल जाएंगे, घर आ जाएंगे। घर आने के बाद हम भूल जाएंगे कि हम बड़े लॉयर हैं, हम भूल जाएंगे कि हम डॉक्टर हैं, हम भूल जाएंगे कि हम बिजनेसमैन हैं, और हम पूरी तरह घर में रम जाएंगे, पूरी तरह घर में हम मर्ज हो जाएंगे। अगर आप गौर करें तो भारतीय संस्कृति में जो एक जमाने से चला आ रहा है, वो घर की एक अलग तरीके से संरचना की गई थी, जिसमें घर में चीजें कम होती थी, खालीपन ज्यादा होता था। जो बात मैं आज और अभी कह रहा हूं, उस बात को इससे पहले कम बोला या सुना गया है। घर का मतलब होता था खालीपन, घर का मतलब होता था स्पेस, घर का मतलब होता था कि घर में चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना घर में रहने वाले लोग हैं। आज बहुत सारे पति पत्नी हैं जिन्होंने अपनी वाइफ की आंखों में आंखें डालकर 1 मिनट भी पिछले 6 महीने से नहीं देखा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा कटु सत्य है। बातें भी हुई होंगी, रेस्टोरेंट भी गए होंगे, बाहर भी गए होंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को 1 मिनट आंख में आंख डालकर नहीं देखा होगा। बहुत कुछ और कुछ हुआ होगा, बताने लायक ना बताने लायक, लेकिन आई टू आई कांटेक्ट नहीं हुआ होगा। और ये बात तो हम आई टू आई कांटेक्ट की कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट की कांटेक्ट की तो और आगे की बात है, वो तो उस रास्ते पर बहुत आगे की बात है। तो हम लोगों ने घर में जो एक स्पेस होना चाहिए था, जो जितना घर में स्पेस होगा उतना घर में हेल्थ होगी, घर में जितना स्पेस होगा, जितना खालीपन होगा, उतना घर के लोगों में सामंजस्य होगा, उतना घर के लोगों में एक हीलिंग होगी, एक नरिशिंग मीडियम होगा। हम लोगों ने क्या किया पिछले 10, 20, 25, 30, 40, 50 सालों में कि जैसे जैसे हमारे पास साधन बढ़े, वैसे वैसे हमारे पास चीजों को खरीदने की हमारी क्षमता बढ़ी, जैसे जैसे हमारी अक्ल बढ़ी, वैसे वैसे हमको पता चला कि दुनिया के और देशों में क्या क्या चीजें मिलती हैं। टेप रिकॉर्डर मिलता है, हमें भी चाहिए। टीवी होता है, हमें भी चाहिए। छोटा नहीं, बड़ा चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर चाहिए। हर एक घर में एक टीवी नहीं, हर रूम में टीवी चाहिए। मोबाइल फोन होता है, हमें चाहिए। फ्रिज होता है, हमें चाहिए। वॉशिंग मशीन हमें चाहिए। जितने जितने हमने अपने घर को प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बना लिया। अगर आप गौर करें तो आप घर में ढूंढते रहते हैं आपका कौन सा रिमोट कहाँ गायब हो गया। इतनी चीजें, रिमोट उसी साइज का मोबाइल होता है,
तो घर में मोबाइल के साइज की और रिमोट के साइज की इतनी चीजों का कंफ्यूजन है कि कई बार आपका सिरदर्द उन चीजों को सही जगह रखने और सही जगह ढूंढने में चला जाता है। तो हमारा घर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो गया जो हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिए था। कितना सुखद बनाया कितना नहीं वो तो एक अलग विषय है। इतना जरूर है कि हमारे जीवन से जो एक हीलिंग मीडियम था उसमें काफी कुछ डेंट लगा दिया। दूसरी बात, जब घर में चीजें ज्यादा होंगी तो हम लोगों से कम जुड़ेंगे। जितनी चीजें ज्यादा होंगी हम टीवी ज्यादा देखेंगे, हम म्यूजिक ज्यादा सुनेंगे, हम मोबाइल पे यूट्यूब देखेंगे, हम लैपटॉप पर कुछ काम करेंगे, हम अपना जो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होंगे उसमें ज्यादा समय देंगे। और जो घर के लोग हैं, जिंदा जिंदा लोग, जिंदा वर्ड सुनने कहने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि जिंदा हैं अभी तक, अभी तो हैं, कल का पता नहीं। घर के लोग जो जिंदा हैं वो कह रहे हैं मुझसे भी तो बात करो, मगर हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे हाथ में डिजिटल मीडियम है। तो हमने घर की जो नरिशिंग हीलिंग मोडलिटी थी उसको हमने खुद डैमेज कर दिया। क्यों हमने इस टॉपिक को रिक्वेस्ट किया मिस्टर लाल से कि इस टॉपिक को लिया जाए, क्योंकि एक भेड़ चाल की तरह, एक अंधों की तरह हम लोग चले जा रहे हैं कि हमारे पास चीजें ज्यादा से ज्यादा हों। ठीक है, हमारे पास अगर अफोर्डिंग कैपेसिटी है 5, 10, 25 हजार, लाख, 2 लाख खर्च करने की, हम जरूर करें, कोई हर्जा नहीं। मगर साथ साथ हम उस सिद्धांत को भी ना भूलें, घर का मतलब घर वाले लोग, घर का मतलब घर जहां बाहर या बाजार सब बाहर, बाजार सब बाहर, बिजनेस सब बाहर। कोई जरूरत नहीं घर में हम लैपटॉप पर 4 घंटे काम करें, कोई जरूरत नहीं अपने बिजनेस के लोगों से, क्लाइंट के लोगों से हम घर आने के बाद भी 12 बजे तक बात करें। और अगर हम कर रहे हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हम घर की महत्व को भूल रहे हैं, जैसा पूरी दुनिया में हो रहा है। अगर आप कोरिलेट करें तो क्यों इतनी प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्यों इतने रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, क्यों इतने फैमिलियों में दूरियां आ रही हैं, क्यों इतना मनों में दूरियां आ रही हैं, क्यों ऐसा है कि लव मैरिज करके आने वाले लोग भी 2 महीने 3 महीने के अंदर एक दूसरे के साथ उकता जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहने को घर होता है, कहने को सिर्फ मकान होता है, मगर उसमें कनेक्टिविटी नहीं होती। मेरी इस बात को अगर किसी को भी सुनने में या किसी को भी विश्वास करने में जरा सा भी डाउट हो तो कभी सोचिएगा कि अब से 30-40 साल 50 साल पहले घर बड़े बड़े होते थे, स्पेशियस होते थे, घर में चीजें बहुत कम होती थी। और आज भी कर्नाटका में और कोस्टल कर्नाटका में, बेंगलोर के आसपास के एरिया में वो घर ऐसे होते हैं, बड़े बड़े बरामदे होते हैं, या गोवा में बड़े बड़े हॉल होते हैं और सोने की जगह बहुत छोटी होती है। जितना मिनिमम जरूरत है वो छोटे कमरे होते हैं, बाकी सब कॉमन स्पेस होता है। अगर घर में 4 फैमिली रह रही हैं तो 4 फैमिली के 4 छोटे कमरे सोने के होंगे और बाकी सब आंगन होगा, वरांडा होगा, वो सब कॉमन स्पेस होगा और वो दरवाजे खुले रहेंगे। कोई भी पड़ोसी कभी भी आ सकता है घर में, किसी के पड़ोसी के आने से कोई खतरा नहीं होगा, किसी पड़ोसी से हमें कोई खतरा नहीं है, कोई हमें डिफेंस नहीं करना है। तो घर का एक मतलब ये था जहां हम डिफेंसलेस महसूस करें। प्लीज लिसन दिस वर्ड अगेन, जहां हम अपने आप को ऑफ गार्ड महसूस कर सके कि हमको गार्ड को हमेशा कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपने कई बार मिलिट्री के, एयरफोर्स के ऑफिसर्स के बाहर गार्ड को खड़ा हुआ देखा है कि जो हाथ में राइफल लिए रहे, और कई बार हम सब लोगों ने सोचा है कि बेचारे कितनी देर तक ये राइफल को ऐसे लिए खड़े रहे अपना पोस्टर बना के। हम में से कोई आदमी शायद 10 मिनट नहीं खड़ा हो पाएगा। उनकी शिफ्ट होती है 4-4 घंटे की, 6-6 घंटे की, और वो हिल नहीं सकते। हम में से काफी लोग ऐसे गार्ड्स लेकर चलते हैं। किन से गार्ड करते हैं? हर दूसरे इंसान से, पड़ोसी से भी, रिश्तेदारों से भी, और घर के अंदर वाले लोगों से भी। घर के अंदर वाले लोगों से भी, डोंट मेस अप विद मी, यू डोंट नो हु एम आई। हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं, वाइफ हस्बैंड को बोलती है मेरे से पंगा मत लेना, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो हम पोटेंशियली एक दूसरे को थोड़ा सा दुश्मन मान लेते हैं और गार्ड लेकर चलते हैं। अब वहां आर्मी के बाहर तो गार्ड जो है वो अपनी यूनिफॉर्म में है और उसके पास राइफल है, मगर घर में क्या गार्ड है? हमारा माइंड, हमारा लॉजिक, हमारे वर्ड्स और हमारी बॉडी की मसल की स्टिफनेस, ये हमारे गार्ड है। तो हम घर में रहकर भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। किनसे? उन लोगों से जिनके साथ हमारा नरिशमेंट होना था, जिनके साथ हमारी कनेक्टिविटी होनी थी, जो ओरिजिनल हीलर थे हमारे
घर में हमारी वाइफ या हमारा हस्बैंड या हमारे बच्चे या हमारे सास ससुर या जितने हमारे नियर एंड डियर वंस हैं या हमारे पड़ोस वाले भी, जिनके साथ हमारी अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि दे कैन वॉक इन, भाई तुम्हारे घर आए, चलो चाय पियेंगे, 5 मिनट बात करेंगे, या हम किसी के घर में जा सकें 10 मिनट बात करने आए, वो चीज़ कहाँ गई? वो चीज़ हमारी नई एजुकेशन में बिल्कुल तितर-बितर हो गई। आपने कभी देखा है किसी भी मंदिर में, दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी शहर में, जब जब आपको सौभाग्य मिला होगा, किसी भी मंदिर में और किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल में, चाहे वो मंदिर रहा हो, चाहे मस्जिद रही हो, चाहे गुरुद्वारा रहा हो, चाहे चर्च रहा हो, चाहे तिबेतन मॉनेस्ट्री रही हो, कभी याद करिएगा, ह्यूज स्पेस होता है, बहुत बड़ा खालीपन। जैन मंदिर मुझे जाने का सौभाग्य मिलता है कई बार, रासन में भी और जैन मंदिर में भी, श्वेतांबर में भी, दिगंबर में भी ह्यूज खालीपन स्पेस होता है। अगर कहीं भगवान की मूर्ति है, जहां मूर्ति होती है या जहां पर गुरुद्वारे में है ग्रंथ साहब रखे जाते हैं, या जहां चर्च में है या जहां मंदिर में है, उसके अलावा ह्यूज स्पेस होता है, खालीपन। और उस खालीपन में जहां कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं है, नथिंग, नथिंग, जहां कुछ नहीं है वहां जहां कुछ नहीं है वहां हीलिंग है। क्यों? जहां कुछ है वहां हम दुनिया से, मार्केट से, बाजार से, सेल्फिश इंटरेस्ट से, कुछ पाने से जुड़े हुए हैं। जो हम कुछ पाने से दूर हो जाएं, चीजों से दूर हो जाएं, लोगों से कुछ समय के लिए दूर हो जाएं, बाजार से, मार्केट प्लेस से, बिजनेस से दूर हो जाएं और उसको हम पीछे छोड़ दें, कुछ समय के लिए भूल जाएं, वहां से हीलिंग शुरू होती है। क्योंकि हीलिंग जब ही शुरू होगी जब आप माइंड को भूल सकेंगे। हीलिंग जब भी पॉसिबल है जब आप माइंड को भूल सके, महसूस कर सकेंगे, आई फील कंफर्टेबल, आई फील एट होम, आई डोंट हैव टू कैरी एनी प्रिटेंस, आई डोंट हैव टू कैरी एनी गार्ड, मुझे अपने को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई गलत नहीं समझेगा, मुझको कोई खतरा किसी से नहीं है। जब आप एक माहौल में बहुत इजीली कंफर्टेबल हो जाएं, वहां आपकी हीलिंग होती है। ये अलग बात है कि आजकल इस बात को भी कई बार लोग गलत समझ लेते हैं कि अगर मैं राजवीर से या आरती से या भूमि से कंफर्टेबल होकर पहले 5 मिनट में बहुत कंफर्टेबल होकर बात करने लगूं, तो उसको भी लोग गलत समझ लेते हैं कि शायद मेरे इरादे कुछ और होंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि आप कितना जल्दी अपने दिमाग को, गार्ड को भूलकर दूसरे इंसान से जुड़ सकते हैं। अब दूसरे दुनिया के 20 करोड़ लोगों से या दुनिया के 200 करोड़ लोगों से जुड़ने की बात तो नहीं है, आपके परिवार के 4-5 लोग हैं, उनसे तो जुड़ सकते हैं। इसीलिए तो परिवार बनाया गया। हम दुनिया की चैरिटी बाद में करेंगे, पहले अपने घर में तो हम सबका ख्याल कर लें। इसलिए परिवार बनाया गया कि हम दिमाग से अलग हो सके, इसलिए उसको हीलिंग कहा गया। तो आज के इस सेशन का या आज की इस बात का या इस विषय का मेरे हिसाब से बहुत महत्व है उन सारे लोगों के लिए जो दौड़ रहे हैं अंधे होकर चीजें इकट्ठा करने में, और दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते घर से बहुत दूर निकल गए, घर वालों से बहुत दूर निकल गए। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आज ये टॉपिक लिया जाए। हमने जितना संक्षेप में बोलना था वो हमने बोला, लेकिन हम उससे ज्यादा सुनना चाहेंगे आरती जी को, राजवीर को और भूमि को। ओवर टू यू मिस्टर लाल। Thank you very much, Dr. Anand, for giving your views about the home healing place. And according to Dr. Anand, I will just highlight 1 or 2 points. What he says is that the home, which was traditionally a place where the person who goes at home, he forgets about all the material world, outside world. And once he or she is at home, they are only thinking about the family, about their own things. They are not bothered what is happening outside. But gradually, when the technology started coming, people have forgotten that thing. And now what they are doing, they are in the race to bring more and more technology gadgets every time whatsoever new gadgets are coming. And that space, which was empty earlier, was being occupied by these electronic gadgets. Ultimately, this thing has happened. The time which they used to spend with their own family has been spent only on the electronic gadget, whether it is television or mobile or laptop. And in this way, whenever there was some problem in the mind of anybody, whether he or she is not feeling well, they used to get healing
because of the love and affection from the home, from the family members. But now he or they are not talking to each other. They are only concentrating on the electronic gadgets. So the healing touch, which used to be there in the Indian old homes, have lost that miracle or the touch. So according to Dr. Rajiv Anand, it is very much required. And that's why he says to now so many mental tensions, so many fights among the husband and wife, because they have forgotten the value of the home. According to him, the home is the real healing, having the real healing powers, which otherwise you will be getting by only paying to the doctors or buying medicines. But without buying so much medicines or without consulting so many doctors, if you give more time to your home, if you spend more time with your family, then you can be cured, you can be healed very early, easily, which is not possible otherwise. Thank you very much, Dr. Rajiv Anand, for giving your views. And as you said that we have to listen from everyone. So that's why I have not summarized more this time. अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने अगली गेस्ट को. आप हैं मिसेज आरती पी जैन. मिसेज आरती जैन एक हाउसवाइफ होम मेकर है. आप कन्नौज में हैं, यूपी में. आपने एमएससी बॉटनी में की है और आपका विश्वास है कि थिक एंड थिन, सुख और दुख में घर से ज्यादा एक सुरक्षित, एक सिक्योर्ड प्लेस कुछ नहीं होती. आरती जैन जी, आपने अभी डॉक्टर राजीव आनंद को सुना. उन्होंने जिस तरह बताया कि घर की जो महत्वता बताई कि इतना महत्वपूर्ण घर होता है, और इन्होंने बताया कि पहले जमाने में जो आपने देखा ही होगा कि किस तरह बड़े बड़े घर होते थे, खाली होते थे. एक आध सोफा होता था, एक बीच में टिपॉय या बीच की सेंटर टेबल होती थी, बाकी कुछ नहीं होता था हॉल के अंदर. और दूसरे एक में खाने का होता था, किचन होती थी. लेकिन अब सबके घरों में अगर हॉल है तो वहां अलग टीवी लगा हुआ है, बेडरूम में अलग टीवी लगा है, चिल्ड्रंस रूम में अलग टीवी लगा हुआ है. और डॉक्टर राजीव आनंद ने बताया कि सब रिमोट ही रिमोट होते हैं सब जगह. अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या विचार हैं, क्योंकि आप होम मेकर हैं, आपने बॉटनी में एमएससी किया हुआ है, तो आपने लाइफ दोनों तरफ से देखी हुई है कि एक बहुत ही पढ़ी लिखी महिला होके आप एक घर में हाउसवाइफ की तरह है. तो आपके क्या विचार हैं कि घर की क्या महत्वता है? क्या घर में वास्तव में हीलिंग पावर है, हीलिंग प्लेस है घर, या जो डॉक्टर राजीव आनंद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आज के जमाने में घर की जगह बाहर भी बहुत हीलिंग पावर. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अपने गुरुदेव को याद कर रही हूँ कि जिनके कारण मुझे इतना अपने जीवन को सहज और सरल बनाने का मौका मिला. और तो ऐसी कोई सुबह ना आए कोई ऐसी शाम कि जिस दिन मेरी जुबां पे ना रहे मेरे गुरु का नाम. नमोस्तु गुरुवर. अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आज से पहले मैंने इस तरह की किसी भी वेबिनार को अटेंड नहीं किया. हालांकि मेरी बोलने की आदत तो बचपन से रही है, मगर फिर भी ये पहला मेरा मौका है. और आप लोगों को बहुत धन्यवाद, खासतौर से डॉक्टर राजीव आनंद को, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं किसी सब्जेक्ट पे बोल सकती हूँ. तो पहली बार बोलने में हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हो जाएं, इसलिए मैं पहले ही सबसे मिच्छामी दुक्कडम कहती हूँ कि अगर मेरी गलतियां हो जाएं तो जिस तरह हंसा दूध सामने रख देने पर दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, उसी तरह अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगे तो उसे ले लीजिएगा, बाकी सब मेरे लिए छोड़ दीजिएगा. आज का हमारा टॉपिक है. मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि बहुत कुछ मिस्टर लाल ने बता दिया है और बहुत कुछ डॉक्टर साहब ने बताया है. अब मैं उसके आगे बढ़ना चाहूंगी, वहीं पे नहीं रुक रही हूँ. मैं उससे आगे की कुछ बात बताना चाहूंगी, क्योंकि वो तो जो उन्होंने बताया है वो बहुत सही है और समझने लायक है. तो आज का हमारा सब्जेक्ट है होम, द बेस्ट प्लेस ऑफ द हीलिंग. होम क्या होता है? होम हिंदी में हम होम को घर कहते हैं. क्या होता है घर? घर को हम जानते हैं क्या? पहले हम घर को तो जाने कि घर है क्या. तो मेरे हिसाब से घर वह स्थान होता है जहां व्यक्ति अपने परिवार के साथ बहुत प्रेम, बहुत स्नेह,
बहुत विश्वास, निडर होकर, भावनाओं के साथ मिलजुल कर संरक्षण से सहित रहते हैं, उस स्थान को घर कहते हैं। जिस स्थान पर व्यक्ति अपने माँ-बाप, अपने बच्चों, अपनी पत्नी सबके साथ रहता है और वहाँ पे ना सिर्फ यही रिश्ते होते हैं, बल्कि मामा-बुआ, चाचा-चाची, पड़ोसियों के, नाना-नानी के सभी रिश्ते उस घर में होते हैं। जब ये सारे रिश्ते घर में होते हैं, तभी वह घर जीवंत घर कहलाता है। बिना रिश्तों के कभी घर हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी पढ़ाई 78 में मैंने एमएससी कर लिया था। बहुत सी अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली थी, मगर मेरा विश्वास था कि एक घर को सँवारने के लिए जितनी भी ज़रूरत होती है, वो सारे जॉब करने से ज़्यादा बेहतर होती है। हम अगर अपने पति को एक संबल दे सकते हैं, तो वो उस समय उससे बहुत आगे जा सकते हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं। और जहाँ हम अगर चले जाएँ और उसके बाद दोनों लोग अपना-अपना जॉब करते रहें, मगर फिर भी वह मुकाम हासिल नहीं हो सकता, जिसे हम अपने पति को संबल देके हासिल करवा सकते हैं। हम अपने सास-ससुर को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को सँवारने में निकाल दिया, उनको हम सुरक्षा, विश्वास और आदर देकर, उनका ध्यान रखकर जो भी कुछ हासिल कर सकते हैं उनसे, जितना आशीर्वाद, जितना प्यार मिल सकता है हमें, वो हमें काम करते हुए कहीं नहीं मिल सकता दुनिया में। हम उनका विश्वास हासिल करके अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम देश को एक अच्छा नागरिक दे सकते हैं। जब हम ये सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें अपने घर को सँवारने में क्या दिक्कत होती है? क्यों नहीं सँवारना चाहते हम अपने घर को? हमारे घर में वह सब कुछ है, जहाँ हमारे संबंधों की कद्र है, जहाँ हमें अपनत्व है, जहाँ हमें प्यार है, विश्वास है, त्याग है, सहनशीलता है, सह-अस्तित्व है। क्यों? हम अपने बच्चों को 1-1, 2-2 बच्चे घर में होते हैं, परिवार सारे बिखरे हुए हैं, तो हमें बच्चों को बहुत बचपन से कहीं चाइल्ड केयर में भेजना पड़ रहा है, कभी हमें उन्हें छोटी-छोटी उम्र में स्कूल में भेजना पड़ रहा है, ताकि वो बच्चों के बीच रह सकें। जब हमारे घर कंबाइंड हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो हमारे बच्चों को सहज में सब कुछ मिल जाता था। दादी, नानी ये सब अपनी कहानियाँ सुनाया करती थी और बच्चे बिल्ट अप हुआ करते थे। जब ये इस तरह से होते थे, तो बिना मतलब हो सकता है हमारे घर में सुविधाएँ कम हों, मगर घर में जब घरवालों का प्यार ज़्यादा होता है, तो वो असुविधाएँ नहीं लगती हैं। अगर असुविधाएँ लगती होती, तो हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जैसे पैदा ना हुए होते। बहुत से हमारे पुराने जितने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका बचपन किसान के घर पे बीता, वहाँ क्या सुविधाएँ थी? मगर वो किस मुकाम पे पहुँचे हैं? वो सिर्फ़ अपने परिवार की बदौलत पहुँचे हैं। तो इसलिए परिवार का जो महत्व हम लोगों ने देखा, हमने भी अपने बचपन में देखा है कि हम एक पूरा एक बड़ा मोहल्ला हुआ करता था हमारा, जिसमें सबके दरवाजे खुलते थे, बीच में बहुत बड़ा ग्राउंड था, जहाँ सारे बच्चे खेला करते थे। सब माताएँ शाम को अपने-अपने दरवाज़ों पे बैठ जाती थीं और बच्चों के खेल का आनंद लिया करती थीं। और हम मंडला जिले में रहते थे, जहाँ पर 3 तरफ से नर्मदा ने घेरा हुआ था उसे। नर्मदा नदी को कुंवारी कन्या माना जाता है, वहाँ लोग उसे बहुत मानते हैं, पूजते हैं और हम लोग वहाँ पर नदी स्नान करने सुबह जाया करते थे। हमको 4:30 बजे जाना होता था। जिस भी बच्चे की आँख पहले खुल जाती थी, वो सारे दरवाज़ों के पड़ोसियों की कुंडी खटखटा देता था और 5 बजे तक सारे लोग इकट्ठे होकर हम लोग निकल जाते थे। हमें वहाँ पर कितना आनंद आता था, उस आनंद की आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम आज फ्लैट में रहते हैं, हमें अपने घरवालों, पड़ोसियों की तो पता ही नहीं है, घरवालों का भी पता नहीं है। 2 चाबियाँ हैं, एक हस्बैंड के पास है, एक वाइफ के पास है। जिसको जब टाइम मिलता है, वो अपना ताला खोलता है, घर पे आता है, तो वो घर नहीं होता। घर तो घरवालों से होता है, जिनके बीच जीवंत संबंध होते हैं और ऐसे ही घर में रहने वाले लोग एक-दूसरे की कद्र करते हैं, एक-दूसरे को भरोसा देते हैं, एक-दूसरे को संरक्षण देते हैं। जब घर में रहने वाले लोगों के बीच में व्यावसायिकता आ जाती है, स्वार्थ आ जाता है, तब वह घर, घर ना रहकर मकान बन जाता है।
और आज लोग घर जानते ही नहीं है, मकानों में ही रहते हैं। तो हम सबसे पहले अब हमने घर को जाना, अब इसके बाद हमारे पास दूसरा शब्द है हीलिंग। अब हम हीलिंग को जानना चाहेंगे, क्या है हीलिंग? तो हम ये कहते हैं कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर मन की ऊर्जा के द्वारा स्वयं को स्वस्थ बनाता है। तो हम स्वयं को स्वस्थ कब बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? स्वस्थ स्वयं को बनाने के लिए हमारे अंदर निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। हम अपनी निगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप से बाहर निकालकर उसके बदले हमारे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको हम अपने प्रकाश में लाएं, उसका हम अपने अंदर प्रकाशित करें, तब हम अपने आप की हीलिंग कर सकते हैं। और जब घर में रहने वाले लोगों के अंदर इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी होती है तो घर भी पूरा पॉजिटिव बन जाता है। उस घर के आसपास से निकलने वाले लोगों को, उस घर में आने वाले लोगों को उस पॉजिटिविटी की फीलिंग अपने आप आती है। उसको फील किए बिना वो रह ही नहीं सकते, क्योंकि वह घर जीवंत घर है। जीवंत घर में पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छी तरह से होती है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, और जानते हैं कि हीलिंग की जरूरत किसे पड़ती है और क्यों पड़ती है। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जो व्यक्ति या जो व्यक्तियों को घर में सहजता नहीं मिलती, अपनत्व नहीं मिलता, वो घर से लगाव नहीं महसूस करते, घर से दूर ज्यादा रहते हैं, तो उन लोगों को मानसिक रूप से बीमारियां घेरती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे मन का और तन का एक दूसरे से कितना गहरा संबंध है। अगर हमारा मन बीमार होगा तो हमारा तन कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। और जब हमारे आसपास का वातावरण बीमार है, हम उसे स्वस्थ फील ही नहीं कर पा रहे हैं, जब वहां पर हमारा कोई ऐसा लगाव ही नहीं लगा रह गया है, तो हमारे अंदर वो एनर्जी भी नहीं आएगी, वो पावर भी नहीं आएगा, और वह अपनत्व भी नहीं आएगा, वह हमारे अंदर विश्वास भी नहीं आएगा। हम सिर्फ जीवन जिएंगे मगर उस जीवन को आनंद नहीं ले सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है मगर उसके बाद भी हम खुश नहीं होते। हम अपने बचपन की एक घटना बताना चाहते हैं कि जब हम पहली बार कॉलेज जा रहे थे, हम ऐसे छोटे शहर में रहते थे कि जहाँ लड़कियां कॉलेज जाकर पढ़ती नहीं थी। मैं अपने समाज की पहली लड़की थी जो कॉलेज जा रही थी। मेरे माँ पिता ने मुझ पर विश्वास किया था कि, और वो भी कोएड में सीधे जा रही थी। तो मेरे माँ पिता ने मुझ पर विश्वास किया था कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। और मेरा कॉलेज जो है वो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर था, तो मैं पैदल नहीं जा सकती थी। मुझे एक साइकिल की जरूरत थी। उस समय मेरे घर में साइकिल नहीं थी, जबकि मेरे डैडी डॉक्टर थे, मगर उसके बाद भी हमारे घर में बहुत लिमिटेड सामान था। और जिस दिन मुझे कॉलेज जाना था, मैं सुबह उठकर आई, मैं दरवाजा खोला, कमरे का बाहर मेरी साइकिल रखी हुई थी। उस साइकिल को देखने के बाद जो खुशी, जो आनंद मैंने महसूस किया था, वो आज भी आपको बताते समय मैं अंदर महसूस कर रही हूँ। उसके बाद बहुत आगे बढ़े जीवन में, बहुत सारी गाड़ियां आई, बहुत सारे जेवर आए, बहुत कुछ मैंने देखा, मगर वो आनंद की अनुभूति उसके बाद नहीं हुई। बहुत सारी गाड़ियों के आने में भी नहीं हुई। वो एक आनंद मैं आपको बताते समय मैं पूरे शरीर में, मन में नहीं, पूरे शरीर में भी वो फील कर रही हूँ कि कितना आनंद आया था। छोटी छोटी सी घटनाओं में, छोटी छोटी सी बातों में, भाई बहनों को रहने में जो आनंद आता था, भाई बहनों से लड़ने में, झगड़ने में, उन्हें प्यार करने में। और हमने अपने बचपन में कभी भी बड़े बड़े खिलौनों से नहीं खेला था। वो इमली आती हैं, इमली के बीज होते हैं छोटे छोटे, उनको तोड़ लिया जाता था और घर पे एक पेंसिल से चीठा बना लिया जाता था और वो इमली के बीजों से खेला जाता था। शरीफा जो खाया जाता था उसके बीज इकट्ठे किए जाते थे और वो जमीन पे खड्डा बना के, 4-5 खड्डे बना के उनमें कुछ कुछ छुपाया जाता था और एक फ्रेंड्स आते थे, वो निकालते थे, ढूंढते थे कि किसमें क्या है। और बिना पैसों के हम ये सारे गेम खेलते थे और बहुत आनंद लेते थे। पर आज वो आनंद हो गया है। जब वो आनंद ही नहीं रहा, मन का सुकून ही नहीं रहा,
तो फिर मन तो बीमार होगा ही ना। और ये तो वैज्ञानिक सत्य है कि तन और मन का एक दूसरे से इतना गहरा संबंध है कि मन अगर बीमार होता है तो उसकी सारी प्रतिक्रियाएं शरीर पर आती हैं, और शरीर बीमार हुए बिना नहीं रह सकता, शरीर बीमार होता ही है। तो हमारे मन में भी दो भाग होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। हमारे अवचेतन मन ने हमारे शरीर मन का ज्यादा से ज्यादा कहना चाहिए 80% हिस्सा ऑक्युपाइड किया हुआ है, और हम उसका तो उपयोग करते ही नहीं है। सिर्फ 20% मन के साथ, चेतन मन के साथ हम चलते हैं। और चेतन मन का कार्य तो वो है कि जो बाहर सारा देखा उसमें ढुल गया, परंतु अवचेतन मन वास्तव में हमारी हीलिंग का काम करने वाला तो वही है, हमारे अंदर संस्कार देने वाला। क्योंकि जो हम दिन भर करते हैं वही संस्कार रूप में हमारे अवचेतन मन में इकट्ठे हो जाते हैं, और वही हम फिर प्रकट रूप में संस्कृति की तरह से दिखाने लग जाते हैं। तो हमारे अवचेतन मन को वास्तव में एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का सारा स्टोर, सारा ध्यान वहीं पे रहता है, और उसको अगर हम उपयोग में करें तो हमें बाहर कहीं हीलिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु इसके लिए हमें परिवार रूपी संस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा, और इसी परिवार के साथ में हमें अपना एक में एक जुड़ाव करना होगा। जब हमारा जुड़ाव हमारे परिवार के साथ होगा तो हमारा घर भी जीवंत बन जाएगा, और उस घर में जब हम रहेंगे तो पहली बात तो कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि सबसे अच्छा मतलब सबसे अच्छा मेडिसिन, कहना चाहिए दवाई जो है वो ये है कि हम खुश रहें, हम एक दूसरे का ध्यान रखें, और परिवार में एक दूसरे का ध्यान, एक दूसरे की भावनाओं की कदर होती है। कदर ही तो नहीं हो रही, इसीलिए तो सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। हमारे घर में एक दूसरे की भावना का सम्मान है, एक दूसरे को स्वतंत्रता है। पर एक बात स्पष्ट कर दूं, स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत छोटी सी लाइन है, और हम कभी कभी अपनी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता के रूप में अपनाना चाहते हैं, और बस सारी गड़बड़ियां वहीं पैदा हो जाती हैं। जब हम परिवार के साथ रहते हैं तो हमारी बीमारियों का बहुत कुछ अंश दूर हो जाता है। पहली बात तो होती नहीं है, परंतु फिर भी बाहर भी तो हम निकलते हैं, और उनके किसी असर में अगर हम कोई बीमारी आ जाए तो बुराइयां और अच्छाइयां दोनों ही हम में होती हैं। क्या सोच कर बनाने वाले ने दुनिया बनाई, हर चीज में अच्छाई है, हर चीज में बुराई। फूल को खुशबू दी तो कांटे क्यों दिए, और चांद को नूर दिया तो दाग क्यों दिया। इसलिए कि हर इंसान मगरूर हो जाता, ये आसमां जमीन से टकराकर चकनाचूर हो जाता। इसलिए हमें अच्छाई और बुराई दोनों का बैलेंस बना के चलना चाहिए। वास्तव में हमारे मन के जो क्रोध, मान, माया, लोभ हैं, ये ही सारी बीमारियों की जनक हैं। इनके कारण ही जब हमारे अंदर लोभ पैदा होता है तो हमारे अंदर किसी चीज को अपने अपने अंदर अधिकार की भावना आती कि बस ये हमारा ही है। हमारे अंदर ये भावना नहीं आती कि जो भी कुछ है इसको हमें सब में बांट के लेना है। बच्चा हमारा आज बचपन से ये सीखता है, नहीं ये हमारी चीज है, हमको नहीं देना किसी को। परंतु जब सारे लोग एक साथ रहते थे तो बच्चा सबसे बांट के ले। हमारे घरों में पहले बचपन में माँ बाप दिया करते थे सामान, भैया ये सब तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा। हमें एक भी बच्चे को अगर मिल जाता था तो वो बच्चा सारे भाई बहनों की चीज बराबर बांटता था। कभी गलती नहीं होती थी कि हम पूरा खा लें या हम ज्यादा खा लें। परंतु आज बच्चे को बांटना ही नहीं आता। जब छोटी छोटी चीजें बांटनी नहीं आएंगी तो बड़ा बड़ा प्यार और अपनत्व कैसे बांट पाएगा। और हमारे अंदर जब बुराइयां हावी होने लग जाती हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होने लगती है, और जब नेगेटिव एनर्जी पैदा होने लगती है तो हम बीमार होने लगते हैं। तो हमारे मन में जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हमें दूर करके अपने अंदर की पॉजिटिव, असल में क्या है, हमारे एनर्जी तो एक ही जगह पैदा होती है पर उसके दो पाइप हैं। एक पाइप से नेगेटिव जाता है, एक पाइप से पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव वाले पाइप को हटा दें तो पॉजिटिव वाला पाइप हमेशा अपना प्रवाह जारी रख सकता है। तो जब पॉजिटिव एनर्जी अपना पूरे अस्तित्व में हमारे अंदर रहती है तो फिर हमारे अंदर इस तरह के केमिकल्स पैदा होने लगते हैं
हमारी जो ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स आदि जो हमारी ग्लैंड्स हैं, वो उनमें से केमिकल अपने आप निकलने लगते हैं, अपने आप प्रोड्यूस होने लगते हैं कि वो हमारे अंदर की बीमारियों को हील कर सकें। इसलिए वो ऐसी चीजें सारी पैदा होने लगती हैं। तो हमारे लिए इस चीज की बहुत आवश्यकता है कि एक जो हमारे अंदर बीमारी या बुराई आ गई है, उनको हील करने के लिए एक प्यारे से, सुंदर से, बहुत अच्छे से घर की महती आवश्यकता है। इसलिए अब मैं यही कह सकती हूँ कि अपने घर के बारे में कि जब कभी मुझको तेरा ख्याल आ गया, मेरे चेहरे की थकान धुल गई, मेरे दिल में खुशी के कमल खिल गए और मेरे एहसास में चांदनी घुल गई। तो मैं यही कह सकती हूँ अंत में कि जो हमारा घर होता है वही हमारे लिए सबसे अच्छा हीलिंग सेंटर है। इससे अच्छा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने घर को बेस्ट बनाते हैं, वहां से बीमारियां लेके आते हैं कि वहां से बीमारियां दूर करके और खुश रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस आरती जैन जी। हालांकि आपने शुरू में कहा था कि ये आपका प्रथम अवसर है बोलने का, लेकिन लगता नहीं है कि आप पहली बार बोल रही हैं। जिस तरह आपने धारा प्रवाह में अपना प्रवचन दिया है, उससे तो लगता है कि आप बहुत ही इस मामले में अभ्यस्त हैं कि किस तरह बोलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मिसेस जैन, एंड आई विल जस्ट हाईलाइट 1 or 2 points of Mrs. Jain. What she says is that the older time, the house which are consist of all the relatives, paternal, maternal, children's, and they were all living together. So the feelings which are coming inside is the sharing and caring, and that is very, very important for healing. And according to her, whenever anybody is ill mentally or physically, whenever the person is coming to home and when they see the happiness in the home from everybody, that healing touch is always there. So her view is that the joint family, because she was talking about the joint family where everyone is there, that is the real home where the people are getting. And she says that she has given even the her own instance of that how the custard apple seeds she used to play with them in the initially, although her father being a doctor, they can afford expensive toys, but there at that time nobody was after those things. Today the situation has changed. Everybody wants to purchase expensive toys, but they are not having habit to share with others. And that is the point when the person comes to the home, there is always a tension, and that is why there is no healing touch. But earlier, or those homes who are still with everyone there, they are really having the healing touch with them. Thank you very much, Mrs. Jain, for giving such a beautiful words today. Although you have mentioned about the joint and nuclear family, I will be like to, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसका जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा. Now I would like to invite my next guest, and she is Miss Rajbir Pathak. Miss Rajbir Pathak is the homemaker at Mumbai. She earlier worked in Axis Bank. She is the happy and content person. She loves to travel and be at home. She considers herself the most patient person on this earth who cannot accept injustice. She loved to have a simple and happy life. Welcome, Ms. Rajbir Pathak on our show. Ms. Rajbir Pathak, you have heard what Dr. Rajiv Anand as well as what Mrs. Aarti Jain has spoken. Now, without taking any time, I would like to go directly to you and asking you your views about the home, a healing place. Ms. Rajbir Pathak, please. It's really nice to be here. And I'm thankful to Dr. Anand कि उन्होंने मुझे पुश किया कि मैं इस अच्छे टॉपिक पे कुछ बोलूं, क्योंकि I am not a very expressive person, but and as Mrs. Jain said that she has not been speaking much on such platforms, but Mrs. Jain आपने बहुत अच्छा बोला, very inspiring. तो मैं भी थोड़ी कोशिश करती हूँ अपने हिसाब से. So today our topic is home, the healing space. Now, what is a healing space? Healing space is where an individual or maybe a living being that
person or a living being feels comfortable. You are seen in that place. You can be heard of, and stress-free life. And ऐसी जगह जहाँ पे सब फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स मिलके अपनी जिंदगी आगे मिलजुल के बढ़ाएं। आजकल के ज़माने में हम कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में जैसे घर थे, बड़े-बड़े थे, जॉइंट फैमिलीज़ थी, बहुत प्यार था, क्योंकि बहुत एक्सपोज़र नहीं था सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी में, तो सब मिलजुल कर रहते थे। लोग बाहर काम पे जाते थे और हमेशा घर वापस आते थे, काम बाहर छोड़कर। They never used to carry that work baggage home. Because after they used to come home, they had their family members welcoming them home, waiting to spend time with them in the day, जैसे साथ में बैठ के खाना खाना, दिन में क्या हुआ, दिनचर्या कैसी रही, बैठ के डिस्कस करना, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करना। सबसे बड़ी बात, साथ में मिलजुल के खाना पीना खाना, जो कि आज बहुत ही रेयर है। ऐसा हम कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में बहुत अच्छी लाइफ थी, सिंपल लाइफ थी, बट आज के ज़माने में वो पॉसिबल काफ़ी हद तक नहीं है। अगर हम देखें तो आजकल जगह नहीं है, इतना एक्सपेंसिव है सब प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग, सो पीपल मैनेज टू लिव इन स्मॉल हाउसेस। तो ऐसा नहीं है कि खुले घर हैं तो खुशी ज़्यादा है, छोटे से घर में भी खुशियाँ ला सकता है इंसान। तो बहुत से तरीके हैं जिस हिसाब से हम हीलिंग प्लेस जनरेट कर सकते हैं अपने घर में, जैसे कि नेचुरल लाइट, नेचर। आप अपनी खिड़की से बाहर देखें तो आपको नेचर दिखे, फूल, पत्तियाँ, खुशी से पंछी, है ना। तो दूसरी बात, आप अपने घर को साफ सुथरा रखें। जो पॉजिटिव एनर्जीज आप चाहते हैं, जिस हिसाब से आप चाहते हैं कि घर में खुशी रहे, तो आपको अपने घर को काफ़ी साफ सुथरा रखना पड़ता है और उसके लिए हर एक को इन्वॉल्व होना चाहिए। ये नहीं कि घर की जो गृहिणी है वही लगी रहे, हर एक को अपने अपने हिसाब से अपने वर्क स्पेस, अपने प्ले एरिया, अपने सब तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए। और जैसे मॉडर्न टर्म में आप कह सकते हैं कि आप कुछ कलर्स ऐसे यूज करें अपने घर में को बनाने में कि आपको उनको देख के खुशी आए। वाइब्रेंट पॉजिटिव एनर्जीज लाते हैं, है ना। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो किचन है, जो कुकिंग है, वो एक थेरेपी है। आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए एक बहुत बड़ी थेरेपी है। और आज भी लोग कुक रख लेते हैं अपने, मतलब बच्चों को जो चाहिए वो बना के कुक को बोल दिया, चलो उनको वो चाहिए वो दे दो, हस्बैंड को क्या चाहिए चलो वो दे दो। बट अल्टीमेटली जब वो उस खाने को खाते हैं जो कुक ने बनाया है, I don't think they get that satisfaction unless the mother of the house या बड़ा कोई सास ससुर या मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी जो प्यार से बना के खिलाएं, वो स्वाद नहीं आता है। तो कुकिंग एक ऐसी थेरेपी, आप बच्चों को इन्वॉल्व करिए, बच्चों को इतना मजा आता है। मेरी बेटी है, मतलब उसे इतना शौक है कि इतनी खुशी से हम बनाते हैं और फिर उसको एंजॉय करते हैं, और वो क्या है, हमारे अंग को लगता है, खुशी मिलती है इंसान को, तो जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में। और भी बहुत से तरीके हैं, आप लोग बैठिए इकट्ठे। अभी जैसे जनरली हस्बैंड काम पे जाते हैं, अभी जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैरिज के पहले करते थे काम, बट मैरिज के बाद फिर कभी किया नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी।
तो आई एम बीइंग फॉर्चुनेट, बट ऑफ कोर्स ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। आज के ज़माने में लोगों को काम करना पड़ता है अपने लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। फाइनेंशियल सिचुएशन आजकल इतनी डिफ़िकल्ट हो गई हैं कि सोचना पड़ता है। तो भले आप दोनों काम करिए, बच्चों को छोड़िए किसी और के सहारे, बट जब आप घर पे आते हैं तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स को वेलकम करना चाहिए, आपको उनको देख के खुशी होनी चाहिए, रिश्तों की रेस्पेक्ट कीजिए, तभी इंसान खुश रह पाएगा। अभी इंसान बाहर से आया थका हारा काम करके पूरा दिन, अभी वाइफ घर पे आके चिड़चिड़ करे, बच्चे अपने परेशानी लेके बैठ जाएं, चलो वो भी सॉर्ट हो जाता है, बट वो जो स्ट्रेस जो घर का, वो इतने एक्सटेंड तक नहीं जाना चाहिए कि जो इंसान बाहर से काम करके आया है उसको और स्ट्रेसफुल बना दे। और घर पे अगर सब फैमिली मेंबर्स खुश हैं तो जो यू कैन से द मैन ऑफ द हाउस है, वो खुश रहेंगे तो ही वो अपने काम में आगे बढ़ जाएंगे, और तो ही वो अपने परिवार की अच्छी तरह परवरिश करेंगे, उनका पूरा ध्यान रखेंगे, उनको जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करेंगे। तो उनका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो उनको खुशी कहाँ मिलेगी? घर पे। तो हमें ये स्ट्रेस करना है कि हमें रिश्तों को आदर देना है, सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी है। जो आगे वाला इंसान कुछ अगर बोल रहा है तो उसको सुनिए, उसको वेलकम कीजिए। अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो एटलीस्ट उनको हौसला दीजिए कि सब ठीक हो जाएगा। वहीं पे इंसान जीत जाता है आधा, तो फिर बाकी वो अपने आप लड़ लेंगे। तो इस हिसाब से मेरा बेसिकली यही कहना है कि हर एक इंसान को, और सबसे बड़ी बात, हर इंसान को सबसे पहले तो अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंसान खुद खुश नहीं रहेगा तो वो दूसरों को खुशी नहीं दे सकता। तो खुद को खुश रखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा अच्छी तरह पता है कि आपको क्या खुशी मिलती है, किस चीज़ में खुशी मिलती है, किस इंसान से खुशी मिलती है। उनके साथ एसोसिएट करिए, उनके साथ समय बिताइए। और ये सब आप कहाँ कर सकते हैं? घर पे। तो घर ही सबसे बड़ी हीलिंग स्पेस हम कह सकते हैं इस दुनिया में। हम लोग आजकल के ज़माने में, पहले पुराने ज़माने में हम समर वेकेशन कहाँ बताते थे? अपने नाना नानी, दादा दादी, सारे कजिन्स इकट्ठे होके इतना मज़ा करते थे। बट आजकल के ज़माने में समर शुरू हुआ नहीं कि पहले ही हम अब्रॉड जाने का प्लान करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, क्रूज़ जाएँगे। वो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो उस जैसा मज़ा कुछ, मतलब यू कैन नॉट कंपेयर। बट अल्टीमेटली आप जहाँ भी जाएँ, वापस तो आप घर पे ही आएँगे, और घर ही ऐसी जगह है, आप कहीं भी दुनिया में घूम आएँ, वहीं आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम पुराने ज़माने के टाइम पे कंपेयर करते हैं कि लोग कहीं भी जाते थे, बाहर जाते थे, वापसी में मतलब अपनापन बहुत होता था। तो वो अपनापन हमको चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि आप अगर इंसान हो, आप में कुछ है, तो आगे वाला भी इंसान है, उसको भी समझिए। तो मेरा यही कहना है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, घर को खुशियों से भरिए। घर जैसा हीलिंग स्पेस और कोई नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे एक जोक है कि भगवान के पास इंसान गया, निकल गया धरती से, तो भगवान ने बोला कि जन्नत का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो कहता है, जन्नत जन्नत में तो मैं अभी आया हूँ। तो इसी से आप हिंट लीजिए कि जन्नत किधर है? धरती पर ही जन्नत है।
और धरती पर कहाँ, घर में ही जन्नत है। तो उसकी आप कदर कीजिए, घर के लोगों की कदर कीजिए, अपने बच्चों को खुश रखिए ताकि आगे की जनरेशन्स खुशी से जिएं, खुश रहें, बेसिकली तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, आगे बढ़ें, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, पेशेंस किसी में नहीं है, हर इंसान एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है, मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहा है, और जो बेसिक लोगों को प्यार करने का जो बेसिक नेचर है वही गुम होता जा रहा है। पर ये शुरू कहाँ से होगा? घर से ही होगा। हम घर पे अपने घर वालों को सिखाएंगे तो ही ये चीज़ें दुनिया में फैलेंगी और दुनिया एक हीलिंग स्पेस बनेगी। ऐसा एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही कहना है। और आजकल हम दुनिया में इतना घूमते हैं, इतनी फोटोज खींचते हैं, वाह खुशी की ये वो तो एक कोट है कि we are a sad generation with happy pictures, so let us change into that we are happiest generation with happy pictures. So मैं यही कहना चाहूँगी और इसी बात पे कंक्लूड करना चाहूँगी। और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर गोयल और डॉक्टर आनंद का। और हम ऐसे ही खुशी से रहें, आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। Thank you. Thank you very much, Ms. Pathak, for giving your views. And what Ms. Pathak has said, according to her, a home can be even, she differ for one point with Mrs. Jain. She says that, yes, the joint family is the ultimate, but because of the work pressure and for the conditions, one has to come out and they have to stay in a flat or with a nuclear family. But what she says that even in the nuclear house or the family, a small house also, one can create happiness or the power healing by giving more, see to it that it should be more lighted, it should be used vibrant colors. So once you are using all those things, you will be creating a happiness thing or healing power in your house. And one more thing which she has emphasized is that everyone should work together. She even said that the food which was cooked earlier by the lady of the house is always having more healing power or give more happiness in comparison to the food provided by the maid servant or the helps. So according to her, a home is the only place where the person might be going here and there, might be going on cruise or enjoying any holidays abroad. But whenever he comes to the home, there is no other place than the home and the healing touch, because when at the home, he can share his problems and that can be shared and that can be solutions can be given by the own family members than the others. So she is very clear that the home is the only place where everyone can get happiness, and thus the healing touch is there. Thank you very much, Ms. Pathak, for giving your views. Now I would like to invite my next guest, and she is Ms. Bhumi Dave. Ms. Bhumi Dave is BA, MA, MAPC, B.Ed. She is the teacher at Mumbai. She is also pursuing CFN Food and Nutrition. She has also worked in various NGOs and taught underprivileged children. She is having a strong desire to help and assist people with the challenges of daily living. She is passionate about guiding people through personal challenges and empower them to achieve a healthier mind. Welcome, Ms. Bhumi Dave on our show. Ms. Bhumi Dave, you have heard what Dr. Rajiv Anand, what Mrs. Aarti Jain, as well as what Ms. Rajbir Pathak has spoken before you. Now, we would like to know from you your views on the home, a healing place. Ms. Bhumi Dave, please. A very good morning to one and all the viewers and my co-speakers. Special thanks to Dr. Rajiv Anand and Mr. Goel for giving me this opportunity to share my opinion on such a prestigious platform. So thank you so much for that. Now, getting back to the topic for today, home, a healing place. Now, let's first understand what exactly healing is. According to me, healing is a very positive and a subjective process involving transformation to a new sense of
wholeness. You know, it's basically a sense of transcendence and reinterpretation of life. It's an intensively personal experience involving a reconciliation of the meaning an individual ascribes to de-stressing events. Life में कई बार stressful events आते हैं, obstacles आते हैं, problems आते हैं. उन problems को किस तरह से हम interpret करते हैं? हमारे perceptions क्या है? Wholeness क्या है? हम अंदर से क्या फील करते हैं और किस तरह से उस सिचुएशन से हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उसको मेरे हिसाब से हीलिंग कहते हैं. Now, if I ask which is the most healing place in the world, or where does maximum healing take place, you might experience answers coming to your mind right now. You know, maybe a religious place for spiritual healing, a meditation center for mental or emotional healing, a hospital or a medical care center for physical healing. But we often forget to talk about a place where we get a combination of all of these. एक ऐसी जगह जहाँ पे mental, spiritual, physical, emotional, हर तरह का healing जहाँ होता है, उस जगह की हम हमेशा बात करना भूल जाते हैं. मेरे हिसाब से that's the most important center of individual healing, which is our home. I believe maximum natural healing takes place at home, and a healing space minimizes stress. It makes you feel good. It improves your health, your overall well-being. You know, it brings you closer to people you love. अगर हम एक ऐसी जगह की बात करें, अगर हम बोले कि इस healing space कैसा होना चाहिए, तो it has to be a space which minimizes your stress, जो आपको overall अच्छा feel करवाए और आपके जो करीबी लोग हैं उसके और करीब ला सके. So healing space is very peaceful, and many of us don't really realize the extent to which our surrounding affect our ability to find peace. जो environment में आप हो, जो surrounding में आप हो, वो कितना आपको powerful, कितना peaceful feel करवा सकता है, इसका हमें अंदाजा usually नहीं होता है. So your environment, your surrounding really plays a very important role as far as healing is concerned. So home is among the most powerful physical, psychological, emotional, and spiritual concepts in human existence. Home provides the boundary and space that supports our need to belong. As human beings, हमारा एक बहुत important need होता है, which is the need to belong. कहीं belong होने का need जो होता है, वो humans के लिए बहुत important होता है, and that need is fulfilled by our home. When you're at home, you feel belonged, you feel needed by all the family members around you. So home reflects our sense of setting, nature, culture and identity. जो सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं घर में, दिए जलाते हैं, आरती और धूप वगैरह करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं हम, वो सब में हीलिंग पावर होता है. वो कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली भी हील करने में बहुत हेल्प करता है. We humans love the image of caring, sharing, and even dying at home. You know, it is said that your home should actually become a light that illuminates the entire street and community. We have a need for a place that is called home because it provides security, control, belongingness, identity, and an ultimate sense of power. एक power जो होता है, जो healing के लिए आपको मदद करता है, वो अंदर से जो एक sense of power है, वो generate करता है आपका घर. And it's a place from where we leave each morning and to which we return to each evening. सुबह सुबह अपनी responsibilities के लिए हम निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो भी काम के लिए निकलते हैं हम. After the stressful day at work, घर आने का मन जरूर करता है. ऐसा लगता है कि अब थकान हो रही है, mentally, physically, we are so exhausted, we want to get back home. ये ख्याल नहीं आता है कि आज बहुत थक गए, आज होटल के रूम में जाके रहते हैं. ऐसा हमें नहीं लगता है. Even as Miss Pathak said कि जब हम हॉलिडे पे जाते हैं, भले कोई 5 स्टार में रुकते हैं, कोई क्रूज पे जाते हैं, स्नोफॉल हो रहा है, ब्यूटीफुल लोकेशन क्यों ना हो, बट आफ्टर अ कपल ऑफ डेज होमसिक लगते हैं. एक अटैचमेंट सा होता है, एक तरह का एक फीलिंग, जो एक जुड़ाव जो है हमारा घर के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसीलिए हमें लगता है कि होम इज अ वेरी एप्ट हीलिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू मी. Even birds and animals return back home at the end of their day. पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमने के बाद अपने घर फिर वो लौट जाते हैं. So be it ever so humble, there's no place like home, and home is where the heart is. These well-known expressions actually indicates that home is somewhere that is both desirable and that exists in the mind's eye. Home is where you don't just grow up and discover yourself, but it's a place where you actually heal from within. और मेरे हिसाब से there is a huge difference between a house and a home. We often get confused between the concept that there is
this is my house and that is my home. So there is a difference. It might sound very similar, but that actually makes a lot of difference. A house is just a structure with 4 walls put together, and who really cares about those walls? जो 4 walls है, उससे कोई लगाव या जुड़ाव हमारा नहीं होता है. Home is a place where you feel warm, you feel welcomed, you feel loved. You don't require a house to heal. You require a home. A space where people just live together, जहाँ कोई connection नहीं है, कोई affection, कोई interaction नहीं होता है, वो home नहीं होता है, वो house होता है, and you can never heal there. You can't feel that positivity radiating. So having a home that you can call your very own makes life very easy, very meaningful, very pleasant, regardless of all the problems you are facing outside. So next time when you actually sit back and reflect on things, do ask yourself whether you live in a house or a home, and do every possible thing to create an environment which feels like home, because home is where you actually heal. Thank you so much. That's the end from my side. Okay, thank you very much, Ms. Bhumi Dave, for giving your views. And what she says, she has made a very interesting point, and that is the difference between home and house. She says house is just a structure, but home is where you have the personal touch, where the family is staying, where you will get the healing power, because you will not get that in a house. And she has said that whatsoever you go out, wherever you go out, enjoy all the holidays, but people feel homesick and they want to come to home so that they will have that comfort which is there in home. Thank you very much, Ms. Dave. I would like to now ask the question. First question goes to Dr. Rajiv Anand. Dr. Rajiv Anand, you have advocated very well with very articulate way about the joint family, old houses, etc., and need that one should be in the home and one should forget every business, everything outside. But Dr. Rajiv Anand, for last 1.5 years now, almost, everyone is at home. They are doing business at home. They are doing work from home. Everything is they are doing. And as per the report, media reports, which one has to rely, more and more divorce cases and rifts are taking place now during the lockdown in comparison to the pre-COVID time. So if the home is so important and is with all healing touch, why this is happening, Dr. Rajiv Anand? सवाल बहुत दिलचस्प है, जवाब भी इजी है कि हम लोग 1.5 साल पहले तक लोगों से जुड़े हुए थे, अपने घर वालों से जुड़े हुए थे दिमाग से, कुछ घंटों के लिए। लेकिन जब हमें 24 घंटे साथ रहना पड़ा तो हम लोग एक्सपोज हुए कि हम दोनों के बीच में या हम चारों के बीच में दिल से जुड़ाव नहीं था, दिल से संबंध नहीं था, या था तो उतना मजबूत नहीं था। क्योंकि दिमाग से अगर जुड़ना है तो वो सुपरफिशियल है, सतही है, उसमें गहराई नहीं है, उसमें स्थायित्व नहीं है, परमानेंस नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम लोग शादी को या अपने घर को एक यूटिलिटेरियन मॉडल पर चला रहे हों कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरा घर चलाओ, तुम मुझे बच्चे करके दो, या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम मेरे गार्ड बनो, प्रोटेक्टर बनो, मुझको घर दो, मुझको खाना पीना दो, मुझे शेल्टर दो। लेकिन ये सब बिजनेस मॉडल है, ये सब यूटिलिटेरियन मॉडल है कि मैं तुम्हें यूज करूंगा, तुम मुझे यूज करोगे। इसमें तो कहीं बिजनेस था। लेकिन अगर दिल से संबंध है तो कोई काउंटिंग नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को गहराई से समझते हैं और समर्पण करके समझते हैं। तो शायद ये एक जलजला या एक अर्थक्वेक या एक सोशल अर्थक्वेक पिछले 15 महीने में जो आया है और पूरी दुनिया में आया है। यूजुअली अर्थक्वेक या जलजला, भूकंप बहुत लिमिटेड सीमित जोन में आता है, मगर ये एक लौता अर्थक्वेक है जो ग्लोबली आया है, जिसने उन फैमिली को हिला दिया जिनकी रूट्स गहरी नहीं थी, मगर उन फैमिली को नहीं हिला पाए जहाँ रूट्स गहरी थी। ओवर टू यू मिस्टर लाल। Thank you very much, Dr. Anand. As usual, you have given a very, again, I will say in a very nicely, you have explained that those who are deeply rooted, there is no problem, but those who are superficially, they have the problems. Thank you very much, Dr. Anand. Now my question, मेरा प्रश्न Mrs. Jain आपसे है। आपने
बहुत ज्यादा एक संयुक्त परिवार के बारे में बोला कि संयुक्त परिवार के ये फायदे थे, लेकिन आज आपको पता है कि आज बहुत लोगों को कार्य की वजह से अलग जाना पड़ता है, बड़े शहरों में जाना पड़ता है, विदेशों में जाना पड़ता है, वहां पे वो संयुक्त परिवार में नहीं रह सकते, वो अलग रहते हैं। और उस वक्त क्या आपके हिसाब से उस जगह जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, उनके एक आध बच्चा भी है, क्या वहां पे हीलिंग पावर नहीं होती? सिर्फ ये हीलिंग पावर जो होती है ये सिर्फ जॉइंट फैमिली में ही होती है, जहाँ बड़े बड़े घरों में और बड़े लोग रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं मिलके, या उनमें भी वो भी वहां रह रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं लेकिन वो रह रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा लंदन में रह के पढ़ाई की है उसने, और मैं कन्नौज में रहती थी। जब वो आता था तो मैं उसके लिए बॉम्बे आ जाती थी। फिलहाल मैं बॉम्बे में हूँ इस समय, क्योंकि वो बॉम्बे रहना चाहता है। उसके बाद भी हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। जॉइंट फैमिली का मतलब ये नहीं है कि हम एक दायरे में सबको ऐसा बांध के रखें कि लोग सांस लेने के लिए भी तरसने लगे। ये मतलब नहीं होता। मैंने शुरू में ही कहा था कि जॉइंट फैमिली का मतलब ये होता है कि सबको अपने अपने हिस्से का आदर मिले, सबकी भावनाओं की कदर हो और अपनी अपनी स्वतंत्रता मिले। अगर वह स्वतंत्रता ना मिलेगी तो फिर किसी का भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। दूर रहकर भी आज मेरा बच्चा, उसके मन में ये भावना कैसे आई? लोग तो जाते हैं फॉरेन तो वहीं बस जाते हैं। उसके मन में शुरू से ये बात थी, नहीं मुझे मतलब उसने पूरी पढ़ाई वहां से करने के बाद भी जॉब करने का भी मन नहीं हुआ उसे। मुझे अपने पापा का बिजनेस ही ज्वाइन करना है। और बॉम्बे में हमारा बिजनेस था, मगर फिर भी वो कन्नौज गया कि मुझे पापा ने जहां से अपनी शुरुआत की है मैं वहां से ही पहले दिन अपना बिजनेस ज्वाइन करूंगी। तो जॉइंट फैमिली का मतलब सिर्फ बंधन नहीं है, और ना जॉइंट फैमिली में ही सिर्फ जहाँ बड़े घर में रहकर ही हीलिंग पावर आता है। सब अपने अपने कार्य से दूर दूर रहकर भी एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं और वहीं से हीलिंग पावर जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच मिसेस जैन। According to her, the healing power can be if you are interconnected with each other by heart, then whether you are staying together or even apart from each other, but if you are connected with heart, the healing power will be there. Now my question goes to, thank you very much, Mrs. Jain. Now my question goes to Ms. Rajbir Pathak. Ms. Pathak, you have mentioned about the joint family home cooking. And you say it's always good that because in joint family, we all know that all the women used to cook, not the men in the older time. And even today, you are saying that the housewife, when the husband comes, the man comes, the housewife should cook and give. Do you think the healing and happiness is only possible if the lady of the house is not working and she is only a housewife? Then only the healing will come. If she is a working woman, then healing will not be there in that house, in that home. Sorry. हाँ, इस बात का मैं ये जवाब देना चाहूंगी कि मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ द लेडी ऑफ द हाउस कुक करे तो उसी में मजा है। मैं ये कह रही हूँ कि जहां तक पॉसिबल है करिए, क्योंकि आज के ज़माने में जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोगों को काम करना पड़ता है, हस्बैंड भी काम करते हैं, वाइफ भी काम करती है, तो वाइफ के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो बाहर का भी काम करे, घर आके फिर कुकिंग भी करे, सबका ख्याल करे। सबको अपना अपना इनपुट डालना है, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। ये नहीं कि वो लेडी ऑफ द हाउस हैं तो उसी पे सारी जिम्मेदारी आप थोप दो, ऐसा नहीं है। और कुकिंग का जहाँ तक है, ऐसा जैसे अभी हम हाउस वाइफ हैं तो हम कर सकते हैं, तो हम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे खुश होते हैं, बच्चे तो उनको बोलो कि अभी हम कुक रखेंगे तो कहते हैं बिल्कुल नहीं रखना, मैं तो नहीं खाऊंगी। तो फिर और मैं खुशी से करती हूँ, मैं अपने अगर बात करूँ तो मैं खुशी से करती हूँ, क्योंकि जब हम खाना खाने बैठते हैं इकट्ठे तो मुझे भी मजा आता है। वो क्या है, आप कुक रखो ठीक है, आपकी मजबूरियां हैं, बट ऑफ कोर्स जब आपकी छुट्टी हो तो ये क्या है, एक तरह की थेरेपी, जैसे मैंने आपको बोला कि ये बहुत जरूरी है और इट हेल्प्स। कभी छुट्टी हुई तब आप अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करो, बच्चे को खुद को इन्वॉल्व करो सबसे पहले तो। But according to you, even a working woman
can if she is working and she is also at home, that home is also having healing power. Of course. If the both husband and wife is working. Okay, Yes, okay. yes. Thank you very much, Ms. Pathak. Now my question goes to Ms. Dave. Ms. Dave, you have mentioned that the ritual performance at home is increase the healing power. It means those homes, those who are ascetic or those who are not doing any rituals, they are not going to have any healing power in their home, Ms. Dave? Okay, no, that's absolutely not the case. This adds on, you know, the rituals that we do or probably the culture that we follow, जो घर में हमारे जिस तरह का ट्रेडिशन फॉलो होता है, वो एक तरीके से हीलिंग पावर ऐड करता है. ओके, एक तरह की पॉजिटिविटी जनरेट करता है. ये भी एक तरीका है जहाँ घर के लोग एक साथ मिलते हैं, जहाँ आरती करने, मेरे घर पे एक रिचुअल है जहाँ पे हम शाम को एक साथ आरती करते हैं. तो इस तरह से एक जुड़ाव सा फील करते हैं. एक तरह से एक तरीका है जहाँ पे एक साथ में यू नो 5 मिनट की एक्टिविटी आप साथ में करते हैं. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रिचुअल इन अ पर्टिकुलर मैनर या सिर्फ पूजा प्रार्थना करने से ही आप हील करते हो, बट दिस इज अ वे थ्रू विच यू कैन गेट योर फैमिली टुगेदर, जहाँ पे इंटरेक्शन शायद थोड़ा सा और बढ़ सकता है. वैसे हम अपने अपने कामों में बड़े बिजी होते हैं, सारा दिन शायद अपने रूम में होते हैं, वेबिनार्स है, सेमिनार्स है, ऑनलाइन लेक्चर्स है, काफी चीजें चलती है. पर अगर इस तरह से रिचुअल्स में जो घर में हमारी चीजें चलती है, जो ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, अगर बच्चे, सीनियर सिटीजन्स या यू नो जो यंगस्टर्स है, सारे मिलके अगर थोड़ा टाइम एक साथ स्पेंड कर ले, तो उस तरह से हम हीलिंग पावर को बढ़ा सकते हैं. That's what I meant. Okay, thank you very much, Ms. Dave. And Ms. Dave says that the healing power can be increased if we have some time to spend together. Thank you very much. So viewers, today you have seen the home, and all our speakers have mentioned very, very clearly the home means where you are connected with each other internally by heart. Home doesn't mean that if you are there, but you are involved in your own work, you are either involved on your mobile or watching TV and you are not connected with each other. If you are connected by heart, then the home, whether you are in a joint family or a nuclear family, it makes hardly any difference. The only thing is the healing power is there. And everybody knows that whenever there is any problem, even the medical fraternity always says that if you are now you are fit, but you require to recover something, whether you are physically or mentally, please take rest at home, because they feel that the care, what you will get at your home, you will not get anywhere. And when it is like this, so one should give that respect to home. And as rightly said by everybody, it is only possible if we are connected with each other, we love each other, we respect each other. If we will respect each other, whether he or she is a small boy or girl, or they are elder parents or grandparents, we must respect each other. Then definitely the healing power in the home will be there. And that's why the best place in the world is the home for the healing touch. Thank you very much, all the panelists. And today's program has been live telecasted by V4 News, Global TV, V4 Stream, News Gaon Se, Samvad Sarokar News, as well as it was shown live on Facebook and YouTube. And our endeavor is to bring to you every day new topic. But now for last 1 week, we have started our Hindi program in evening every day, and that is for half an hour at 4:30. So today, कल आज और कल लाल गोयल के संग, और आज हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सरन, फॉर्मर विजिटिंग प्रोफेसर IIM लखनऊ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डेलस USA. तो आज उनसे हम उनके अतीत के बारे में, कल के बारे में, आज का क्या प्रेजेंट है और आगे क्या वो मैसेज देना चाहते हैं, उसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच ऑल द panelist, Dr. Rajiv Anand, thank you very much. Thank you very much. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. Mrs. Aarti Jain, thank you very much. Ms. Rajbir Pathak, and thank you very much, Ms. Bhumi Dave, for giving your very, very enlightening views. And thank you all the viewers for watching our show. Thank you very much.